Hello students, today I am going to start your new chapter, that is limits and derivatives. Now what is there in limits and derivatives? What is this? Actually, limits and derivatives is the part of the calculus. Calculus, first of all, try to understand what is this calculus. There are two parts in the calculus. One is the limits and the derivatives and the other one is the integration. Here in 11th class you will study about the limits and derivatives. And in 12th class, its extended part would be called continuity and derivation. Again means in your 12th class, again you will study this topic. Because this is very important. In your 12th class, this calculus carries 30 weightage of 35 marks out of 80. So you can see here about, you can say 45% weightage is there in your 12th class board exams of this calculus. So it is a very important chapter topic. This is this unit based on your chapter 5, 6, 7, 8, 9. There are these 5 chapters of calculus in your 12th class. So I just telling you this to tell this what is the importance of this chapter in your board exams. Okay. So now here in 11th class we are concerned with only this limits and derivatives. This part of this calculus. Otherwise, what is this calculus actually? Calculus is that branch of mathematics which deals with the study of, किस चीज की study कर रहे हैं? Change in the value of any function. Change in the value of any function as the point in the domain changes. ये कैसे समझ आएगा? Let me explain you how it is. You are familiar with this graph. This is the graph of the distance line graph. You have studied it in your physics. कि ये time है. Suppose there is a body which is in the moving position. Then its graph is like this. Then what happens? At this time t1, its distance is, it has covered this much distance. In time t2, at t2 time, its distance is this. Its corresponding distance is this. Now, what is the change in the time? This is t2 and this is t1. t2 minus t1 means this much is the change in the time. This is delta t. And if this is distance s1, if we are representing it, this s1, and this is the distance s2, the corresponding distances of t1 and t2 respectively, then this much is the change in the this distance covered. So when we study about this change, study of change in this, as there is the change in the value of the domain, then when we will study about this comes under this topic. All this comes under this topic. We will study about this now. Now students, we try to understand what is the need of these limits. लिमिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल के रास्ते से समझते हैं कि suppose there is a moving object which is moving with a fixed speed. Fixed है उसकी speed, ठीक है? Fixed speed है. तो अब क्या है? This is the time in seconds. ये दिया 1 second, 2 second, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक? फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड ये अगर इसकी स्पीड है तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? अगर सपोज करो 1 सेकेंड में इट इज कवरिंग 1 मीटर सपोज, तो 2 में कितने करेगा? 2 मीटर, 3 में 3 मीटर, 4 में 4 मीटर, लाइक वाइज. तो स्पीड क्या होगी इसकी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. दिस इज इट्स स्पीड. आपने इसकी यहाँ पर अगर इसकी टोटल स्पीड निकाले, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, नो प्रॉब्लम. इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकालनी होती है. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है जी?
किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पर इस टाइम पर इसकी स्पीड क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जिसकी फिक्स्ड स्पीड है, जिसकी स्पीड ही फिक्स हो गई, तो उसकी इंस्टेंटेनियस यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी, फिक्स है जी, इसकी स्पीड तो फिक्स है, वही वाली फिक्स्ड स्पीड जो है इसकी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी, सेम है, फिक्स्ड स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इफ द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अगर बॉडी की जो है स्पीड वो चेंज हो रही है, एज आई एम टेकिंग वेरी जनरल एग्जांपल, इफ वी ड्रॉप अ बॉल, ठीक है, ऊपर से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया, अगर सपोज करो ये पॉइंट ए है एंड यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल हियर, ये ग्राउंड पर आ रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी है, इस पर इसकी स्पीड क्या होगी? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी बॉडी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इट कम्स डाउन, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। एक स्पीड से तो वो मूव नहीं करती, फिजिक्स में आपने पढ़ा है अपनी जूनियर क्लासेस में, व्हाट डज इट मीन, यानी कि इसकी स्पीड फिक्स नहीं है, इसकी स्पीड यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये स्पीड 0 थी, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 स्पीड थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर क्या स्पीड है उसकी, ठीक। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट की सिर्फ बात करें, तो कोई पॉइंट पर अगर हम ये देखें कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो पॉइंट पर, एक पॉइंट पर किसी ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0, ठीक है, एक पॉइंट पर सिर्फ उस पॉइंट की बात करें एंड डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि हम इसी पर्टिकुलर पॉइंट एक फिक्स, हाँ जी, इस टाइम पर 2 सेकेंड पर 3 सेकेंड, तो उस टाइम टाइम भी 0, तो 0/0 हो गया, तो यानी कि ये तो 0/0, अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट बी, तो 0/0 विच इज अनडिफाइंड, एक्चुअली ये जो है 0/0 फॉर्म है, ये कहलाती है अनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसके बारे में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। 7 अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है, उनमें से एक ये है। तो अब ऐसा तो लेकिन हो ही नहीं सकता कि इसकी स्पीड यहाँ पर अनडिफाइंड हो, 0/0 अनडिफाइंड हो, यहाँ पर स्पीड तो कुछ इसकी होगी, लेकिन वो हम कैसे निकालेंगे, दैट वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लिमिट। कैसे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो लिमिट्स जो टॉपिक है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहले तो क्यों, वाई, उसके बारे में। तो जब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए ज़रूरत हुई तब, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे, अब इसको समझिए। जैसे कि व्हेन यू ड्रॉप द बॉल फ्रॉम द टॉप एंड इट इज़ फॉलिंग डाउन, तो इस जगह पर जहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप किया है टाइम 0 था, ठीक। आप सपोज कीजिए विद इन 1 सेकेंड इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर पहुंच गया, ये 1 सेकेंड के अंदर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 1 सेकेंड, और इसमें इसने 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 50 सेंटीमीटर कैसे पता चल गया, क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा के, टाइम लगा के ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये सारा फिजिक्स का काम है, वहाँ से ये कैलकुलेट किया गया। तो बी पॉइंट पर तक आते आते इसकी डिस्टेंस होगी 50 सेंटीमीटर। तो अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लिया, 1 सेकेंड, तो 50/1 आ गया, यानी कि 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी डिस्टेंस, एवरेज स्पीड हो गई फ्रॉम हियर टू हियर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसकी जो थी स्पीड इन द बिगनिंग, जब आपके हाथ में बॉल है, जहाँ से आपने छोड़ा, इसको ड्रॉप किया, वहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड थी 0, यहाँ से इसकी एवरेज स्पीड शुरू हुई 0, यहाँ से थोड़ी बड़ी होगी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, क्योंकि आपको पहले बताया इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 50 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की एवरेज स्पीड है 50।
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक के ये टोटल, मान लो ये 0 था, ये इसकी यहाँ पर पहले 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुई, मान लो ये 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड हुई, तो इन सब का एवरेज मिला के 50। अगर ये बात होती है कि यहाँ से यहाँ तक का इन सब स्पीड्स का एवरेज मिला के 50 है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर देखो, इसके लिए ये समझो, अगर मेरे पास 5 नंबर लगाओ, 2 एक है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है मान लो 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ ये 10, ये मान लो ये लास्ट वाला 15 है, ठीक है। और आपके 1 2 3 4 ये 5 नंबर हो गए, कितना हो गया 10 20 30 40 बाय 5, ये आ गया 8। अब एवरेज 8 आया है, लेकिन ये यहाँ से शुरू हुआ, देखो बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और एवरेज जो आया लगभग यहाँ पर आया। तो जो एवरेज है, अगर ये इंक्रीजिंग में जा रहा है, असेंडिंग में जा रहा है, तो जो लास्ट वाला वैल्यू है, तो एवरेज तो उससे कम ही है ना, तो एवरेज तो उससे कम, यानी लास्ट वाला वैल्यू तो ज्यादा ही होगा ना उस एवरेज से। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं कि स्पीड इट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और यहाँ पर इन सब का यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और ये स्पीड बढ़ती हुई आ रही है, तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी पर जो स्पीड होगी, बी की जो स्पीड होगी वो 50 से तो ज्यादा है। ये बात तो पक्की होगी कि नहीं? ओके, तो हमारे ये तो हो गया क्लियर कि जो बी पर जो स्पीड होगी वो 50 से ज्यादा होगी। इट मीन्स speed of the ball at point B is greater than 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमने ना C पॉइंट पर कितना डिस्टेंस 0.5 सेकेंड के बाद, यानी 0 से यहाँ से आपने स्टार्ट किया, 0.5 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, वो इस फॉर्मूले से अपने आप निकाल लिया। वो निकालने पर ये डिस्टेंस आया 12.5 सेंटीमीटर आया। तो अब यहाँ की एवरेज स्पीड कितनी हो गई? अगर हम देखें एवरेज स्पीड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12.5, क्योंकि शुरू में डिस्टेंस कितना था 0, और यहाँ पर कितना है 12.5, तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस माइनस फाइनल टाइम 0.5 और शुरू का टाइम 0, तो यह है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपने यहाँ का निकाला कि यहाँ की एवरेज स्पीड कितनी है, बी और सी के बीच की एवरेज स्पीड कितनी है, तो वो भी यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, पहले वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आपके पास यहाँ का डिस्टेंस आ गया, टोटल 50 पहले था यहाँ पर, और ये 12.5 निकाल लिया आपने, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम माइनस कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर नीचे टोटल टाइम कवर, यहाँ ये आपके पास इसका एवरेज स्पीड भी आ गया, ठीक है। ये आया 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि यहाँ जो आपकी एवरेज स्पीड आ रही है, यहाँ पर वो आ रही है कितनी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ की कितनी आ रही है, आपकी आ रही है 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बात तो क्लियर होगी कि अगर यहाँ की 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब, और यहाँ 25 है, तो ये आपकी स्पीड ये इंक्रीज करती जा रही है ना। अब इसके बाद तो क्या किया हमने कंक्लूड कि जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो एवरेज स्पीड निकल आपकी इंक्रीज होती जा रही है। तो हमने यहाँ सी और बी की भी निकाल ली, वो 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रही है। तो अब इसका मतलब जो बी की होगी वो 75 सेंटीमीटर एवरेज, इसकी जो स्पीड एट बी होगी वो 75 सेंटीमीटर से तो वो ज्यादा है, ये देखो 75 सेंटीमीटर से ज्यादा है। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट है, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी इस पोर्शन में वो बी से भी ज्यादा होगी, क्योंकि नीचे नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रही है। तो एवरेज स्पीड बिटवीन बी डी वो बड़ी होगी बी की स्पीड से, और बी की स्पीड जो है वो यहाँ की एवरेज स्पीड से ज्यादा है। तो हमने क्या किया, इसके लिए यहाँ पर सबकी एवरेज स्पीड जो है वो लिख दी। देखिए यहाँ पर तो अलग अलग टाइम का 0.5 सेकेंड पर, यानी कि यहाँ पर 0.5 सेकेंड पर डिस्टेंस इतना कवर था, एवरेज स्पीड इतनी थी। तो जैसे जैसे ये नीचे आ रही, इधर 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर नीचे और आया 85, यहाँ देखिए यहाँ पर धीरे धीरे 75 के बाद 87.5, फिर 97.5, इस तरीके से इस फॉर्मूले में रख के अलग अलग डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके ये एवरेज डिस्टेंस आपने कैलकुलेट की। तो आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे ये देखो, जब 1 सेकेंड हुआ तो टोटल डिस्टेंस कवर कर ली 50, यानी कि यहाँ पर ये बी पॉइंट पर है ना, तो यहाँ पर ये 100 आ रहा है,
और अगर आप उससे नीचे चले जाओ, अगर यहाँ से भी देखो, अगर नीचे से ऐसे ऊपर जाओ तो ये भी 100 को आ रहा है ना, यहाँ से, क्योंकि नीचे भी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन आप रिवर्स में देखोगे तो कम होती जा रही है कम होती जा रही है कम होती जा रही है कम होती जा रही है, और इधर से आ रहे थे तो हम बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो ये जो है हमने ये देखा कि इधर से भी ये बढ़ते 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 100 के पास भी, जब इधर से देखें डिक्रीजिंग में इस तरीके से दूसरी साइड से, तो वो भी आपकी टुवर्ड्स 100 इट इज गोइंग, एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम अप टू डाउन डायरेक्शन वी आर गोइंग, तब भी ये 100 के टुवर्ड्स से जा रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस आपकी स्पीड है बॉल की, दैट इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। अगर हम वैसे फॉर्मूले से देखें जो फिजिक्स का फॉर्मूला होता है, मतलब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट इज द डिस्टेंस एट, तो वो उस फिजिक्स वाले फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट हो पा रहा था। लेकिन आपने लिमिट लगाया, लिमिट लगाने के बाद, लिमिट यही होता है कि आप एक लेफ्ट साइड से देख लो इसको, अगर मानो कि लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, इधर हम राइट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट को लिमिटाइज करते गए इस तरीके से, तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ सकता है। यही आपका लिमिट्स में हमने करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस तरीके से। लेकिन ये तो हुआ कि मैंने एक एग्जांपल आपको फिजिक्स का लेके आपको दिखा दिया कि क्योंकि एक्चुअली डिमांड इसकी फिजिक्स में हुई थी, इसीलिए फिर मैथ्स वालों ने इसका इजाद किया, ये मेथड आपका लिमिटाइजेशन, लिमिट्स निकाली उन्होंने। लेकिन हम फॉर्मूले अब जो और भी हैं हमारे मैथ्स के, कैसे हम फॉर्मूले में क्यों अप्लाई करते हैं, एक मैं मैथ्स का फॉर्मूला लेके भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अभी मैंने आपको जो इससे पहले एग्जांपल रियल लाइफ से रिलेटेड फिजिक्स के एक प्रॉब्लम लेके आपको बताया कि क्यों हमें लिमिट की जरूरत पड़े। अब मैं फिजिक्स आपके मैथमेटिक्स में आ जाती हूँ। जैसे ये आपके पास एक फंक्शन f(x) = x - 1 √x - 1, we can't know behavior of this function when x approaching to 1, अगर x approaches to 1 है, तो अगर आप f1 रखते हैं तो देखो 0.0 फॉर्म है which is undefined, 0.0 form is undefined form. So to tackle such type of problem we use the concept of limits, क्योंकि अब इसमें मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यूज रख के दिखाई है कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0.99 रखा होता तो इस x की जगह ऊपर नीचे, तो ये फंक्शन की वैल्यू आती है कैलकुलेटर की हेल्प से, ये सारी निकाली हुई है। अगर x की वैल्यू 0.99 रखते तो ये, अगर ये रखते तो ये, 1 पर तो हमने बोला अनडिफाइंड है, लेकिन 1.001 रखते तो ये आती वैल्यू fx की, 1.01x की जगह यहाँ रखते तो ये वैल्यू आती, 1.1 रखते तो ये। तो हम अगर देख रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, 1 की तरफ अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तब भी इसका, तो भी ये इट इज अप्रोचिंग टू, क्या आंसर आ रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये किसके नजदीक जाता जा रहा है, आंसर ये अप्रोच कर रहा है 2 की साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है वो 2, क्योंकि इट इज अप्रोचिंग टू 2। अगर हम राइट हैंड साइड से पीछे की तरफ चलें तो ये देखो 2.10, 2.010, 2.001, तो ये भी किसकी तरफ आके कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज का मतलब किस एक पॉइंट की तरफ आके ये फोकस कर रहा है, तो वो भी 2 की तरफ आ रहा है। तो ये अगर हम इधर से बोलते हैं तो ये राइट हैंड लिमिट होता है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने x की वैल्यू अगर ज्यादा लेके बात की है तो राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट भी कन्वर्ज कर रही है आपकी 2 के ऊपर। तो ये आपकी दोनों जब सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका दोनों सेम हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये देखो, ये जो मैं लिखूंगी ये लिमिट जो होती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LT या फिर LIM। LT x टेंड्स टू, x कहाँ पर टेंड कर रहा था 1, इट इज टेंड्स टू, ये बोलूंगी इट इज अप्रोचिंग टू भी बोल सकते हैं या टेंड्स टू। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 या फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, किसी भी तरीके से ये लिखा हो सकता है, किसी बुक में किसी तरीके से, किसी में किसी तरीके से लिखा हो। तो x इज नॉट एग्जैक्टली 1, देखो x इज नॉट एग्जैक्टली 1 की 1 नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि 1 पर तो ये आपको पता अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, इट इज approximately, it is approaching to 1, it is not exactly 1। जब हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब पक्का अभी समझ लीजिए, इसका मतलब it is approaching to 1, it is approaching to 1, it is not exactly equal to 1, ठीक है, approaching to 1। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी सेम होगी तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, कैसे लिखती हूँ LIM, लिमिट x टेंड्स टू 1 गए हम, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आई आपकी, आंसर क्या आया उसका 2 आया,
ठीक है, तो जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों का आंसर 2 आ रहा था आपका, तो आप लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू आपका ये 2 है। और हाँ जी, तो अभी मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया इसमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी 2 है, राइट हैंड लिमिट ये भी 2 है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों सेम है, तो हमने बोल दिया कि ये लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट ही करे। तो ये चीजें हमें देखनी है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो दोनों एग्जिस्ट भी करते हो, और दूसरी बात कि वो दोनों सेम हो, ये चीज है। अब ये कैसे होते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लिमिट्स निकालते हैं। लिमिट्स ऑफ व्हाट, किस चीज़ का लिमिट निकालते हैं? हमेशा जो लिमिट है एक फंक्शन का ही निकलेगा, ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट बात जो अपनी याद रखनी है। दूसरा, व्हाई टू इवेल्युएट लिमिट्स, हमने लिमिट्स निकाली क्यों ज़रूरत पड़ी हमें लिमिट्स निकालने की? जब आपने अभी देखा कि फिजिक्स में रिक्वायरमेंट थी, जैसे यहाँ पर 0.0 फॉर्म हो गया, जिसकी हम इनडिटर्मिनेंट वैल्यू है, जिसकी हम वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे, उसकी भी हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो अब हाउ टू इवेल्युएट, अब हम लिमिट्स को निकालते कैसे हैं? तो इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझें, सबसे पहले अगर आपके पास, मैंने बताया कि लिमिट जो है पॉलिनोमियल फंक्शन का ही निकलता है, तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अगर फंक्शन कोई भी, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, मान लो 2x² प्लस या x² प्लस 2x माइनस 7 है, आपने लिमिट इसमें लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, ये लिमिट है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपने इसके ऊपर लिमिट लगा दिया x इज टेंडिंग टू 2। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में तो हमेशा 1 है ना, ये कभी भी 0 कौन, ये देखिए जी, मैंने ना इधर ये आपकी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी हुई है, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, ठीक। तो अब आपकी मोस्टली इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये वाली आएगी, ठीक। तो अगर ये वाली फॉर्म तो आपकी कभी आएगी नहीं इसमें, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 1 है, ठीक, 1 हो गया। तो क्या कहा मैंने कि ये 0.0 फॉर्म ये तो कभी आएगी नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, पुट द वैल्यू ऑफ द x डायरेक्टली, यानी 2² प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7, यानी 4 प्लस 4 माइनस 7 दैट इज प्लस 1, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। तो बात क्या हुई कि हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, तो पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, डायरेक्ट आपने लिमिट लगानी है उसमें, बहुत ही आसान है, लिमिट डायरेक्ट। ये जो लिमिट है इसका बार बार मैं मतलब बता रही हूँ, x इज टेंडिंग टू 2 मींस x इज अप्रोचिंग टू 2, ठीक है, x इज अप्रोचिंग टू 2, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अब दूसरा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अगर आपके पास ये फॉर्म आ जाती है, क्योंकि मैंने बताया वैसे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ही है, आपके पास यही वाली आएगी आपके जो सिलेबस में, तब हम डायरेक्ट इस तरीके से लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप करके देखोगे, आप अगर जैसे कि यहाँ पर सपोज करो लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, दिस इज x माइनस 1 या x² माइनस 1 x माइनस 1। अब लिमिट 1 पुट करके देखो, अब यहाँ पर लिमिट आप 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, दिस इज 0.0 फॉर्म आ गया, ये तो आपका, ये आपका आंसर नहीं, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या बताती है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का एग्जांपल लेके बताया था कि जहाँ 0.0 फॉर्म है, इसका मतलब वहाँ पर उसका कोई डेफिनेट आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो आपको 0.0 फॉर्म दे रहा है, वो निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लिमिट, निकालना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने ऊपर से आपको स्पीड्स बताया था, नीचे लेट के आगे और नीचे से ऊपर, तो मैं एग्जैक्टली 1x स्पीड पर पहुँच गए थे ना, तो यही चीज़ है लिमिट। तो इसमें अब हम कैसे करेंगे? अगर 0.0 फॉर्म आ जाता है तो फिर क्या तरीका है? सब्स्टिट्यूशन से तो 0.0 फॉर्म आ गया, उस केस में आपके पास मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिख रही हूँ। उस केस में एक्चुअली आप ये देखो, कन्वर्ट द क्वेश्चन व्हाटएवर इज गिवन, कन्वर्ट दैम दोज क्वेश्चंस इनटू डिटरमिनेंट फॉर्म, उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन कौन सा? या तो रेशनलाइजेशन करेंगे,
ठीक है, कहीं भी स्क्वायर रूट सर्ड दिख जाता है तो आप रेशनलाइजेशन कीजिए, या फिर फैक्टर बनाइए, कोई सेकेंड है मेथड के फैक्टर बनाइए, या फिर स्टैंडर्ड कुछ मेथड्स हैं जो भी मैं आपको यहाँ पर लिखूंगी वो अप्लाई कीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है इस तरीके का, जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि चेंजेस इट्स बिहेवियर एट एनी पॉइंट। 0 के लेफ्ट में माइनस एक्स है, 0 के राइट में प्लस एक्स है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो 0 पॉइंट के लेफ्ट में कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और 0 के राइट में और 0 पर अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ऐसे वाले फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अभी रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, स्टैंडर्ड मेथड, तो जिनमें डायरेक्ट 0.0 फॉर्म आई वो लगाने। अब स्टैंडर्ड मेथड्स कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पर कुछ आपके फॉर्मूले लिख रही हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू, हाँ जी, तो ये मैंने जो आपके ये कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स लिखे हैं, इसमें ये है आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेस्ट पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए रेस्ट पावर एन माइनस 1। इसमें ध्यान रखना कि x जो है उसकी लिमिट दैट इज टेंडिंग टू a, यानी ये जो बेस है ये x इज टेंडिंग टू a, और यहाँ भी नीचे x माइनस ए ही होगा, ऊपर क्या होगा, पावर होगी उसकी सेम। मैं आपको कुछ बताती हूँ, जैसे यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ पर है सपोज करो x रेज टू पावर x माइनस 5, ये 5 है ना, ये x ये 5, तो इधर x और ये 5 होगा, x माइनस 5 और इधर कोई भी लिमिट लगी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है n a रेस्ट पर n माइनस 1, n कितना है 7 है, n यहाँ पर 7 है, a कितना है 5 है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो n की जगह 7, a 5 और इसकी पावर होगी 6, क्योंकि 7 माइनस 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो आइडेंटिफाई करना आना बहुत जरूरी है आपका। इसका फॉर्मूले का प्रूफ भी है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। अब उसके बाद आ जाइए लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू 0। अब जितने भी बाकी है ना उनमें सब में x टेंडिंग टू 0 है, ये देखो। और इसमें वट एवर साइन x अपॉन x, अगर आप यहाँ पर देखो, अच्छा इसमें भी आप अगर देखते हैं, अगर x टेंडिंग टू a है, यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर हम लिखें ये वाला, तो आप ये देख सकते हैं अगर x की जगह मैंने a लिखा तो a की पावर n माइनस a की पावर n a माइनस a, ये 0.0 फॉर्म आ रहा है ना, तो अगर 0.0 फॉर्म इस फॉर्मूले से आए तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद है आपके पास ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। आपने देखना साइन का जो भी एंगल है डिनोमिनेटर में वही होना चाहिए एंड दैट मस्ट बी टेंडिंग टू 0। अगर ऐसा है तो आपका आंसर 1 होगा। सेम इज फॉर tan, tan में जो एंगल है वही नीचे और दैट एंगल इज टेंडिंग टू 0, तो आंसर है 1। इसके बाद है 1 माइनस कॉस या cos x माइनस 1, कुछ भी कह लीजिए, अपॉन x, तो ये होता है 0। 1 माइनस कॉस, अगर x इज टेंडिंग टू 0 अपॉन 0, तो आपको पता है कि cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो गया 0.0 फॉर्म आ गई, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर है 0। उसके बाद है e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर लिमिट x टेंड टू 0, तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन x की जगह 0 रखना है जी, तो 0, तो e की पावर 0 हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0.0 क्या हो गया आपका, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका डायरेक्ट आंसर है 1। ऐसे ही लॉग में log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी देखिए आप इसको इसमें आप log 1 प्लस एक्स की जगह 0 रखिए, log 1 आ गया, log 1 0 होता है, 0.0 इज इक्वल टू 1 आ गया, सॉरी 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी बता दूं, इसके अलावा भी हैं और, लेकिन जो आपके सिलेबस में हमने वही लिखा है कि अगर दो फंक्शंस पर ऐसे है आपके पास, ये सपोज करो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये है आपके पास x प्लस 2 एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये दो फंक्शंस है, एक फंक्शन ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, दोनों में अलग अलग लिमिट लग रही है, तो हम इनको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अगर बीच में माइनस होगा तो यहाँ माइनस और फिर x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए इसको।
आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दीजिए, इवन देन इट इज द सेम, ठीक है। और अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है और उनमें लिमिट लग रही है तो आप उनको अलग अलग स्प्लिट करके भी इस तरीके से अलग अलग करके भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज रैशनल फंक्शन, दो फंक्शंस डिवीजन में है तो हम उनको अलग अलग भी लिमिट इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर है कि कोई एक स्केलर है किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x अपॉन x, दिस इज योर क्वेश्चन सपोज। तो दिस 3 इज अ स्केलर, ठीक है। लिमिट आपको इसमें अप्लाई करनी है तो 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, और आपको इसका फॉर्मूला पता है कि ये क्या होता है 1, तो 3 into 1 इज इक्वल टू 3 हो गया आपके पास, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, sin x अपॉन x टेंड्स टू 0 1 होता है, ये फॉर्मूला आपका। तो अब आपको बेसिकली एक तो ये फॉर्मूले, जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये तो था इसकी पूरी थ्योरी कह लीजिए कि ये कहाँ से आया, कैसे करना है वो सारा बता दिया, लेकिन वो आएगा कैसे, व्हेन वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चंस में इन सबको अप्लाई करेंगे तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस इसके करने कैसे हैं, लिमिट्स हम करते कैसे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ये वाले, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस कैसे करने इन माय नेक्स्ट वीडियो।